Hello friends, in today's class we will discuss the cottage cheese preparation. Now what is mean by cheese? Cheese is a high fat and high protein dairy product made of when milk cream, skimmed milk, buttermilk or goat milk or sheep milk or any combination thereof is stored and fermented or fungi, yeast or bacterial cultures are added. So next slide. Once the majority of the whey is removed, the cheese that remains is either eaten as it is or left to ripen and eaten at different stages of maturity of the cheese. So cheese क्या होता है? चीज एक हाई फैट हाई प्रोटीन कंटेनिंग मिल्क प्रोडक्ट है जो कि मिल्क, क्रीम मिल्क, स्किम मिल्क, गोट मिल्क या शिप मिल्क से शिप मिल्क को सोवर या फर्मेंट करके with the addition of fungi और number of the bacteria are there, वो ऐड करके हम उसको फर्मेंट करवा के चीज बना सकते. Now there are certain important steps are there like pasteurization, curdling, curd processing, that is cutting of coagulum and heating. Next is salting, stretching, simmering and washing, and after aging. So these 8 steps are there in the preparation of the cottage cheese. So we will discuss all these steps step by step. Now pasteurization, why it is to be done? It is done to kill bacteria capable of affecting the quality of cheese. Example coliforms, which can cause early disagreeable taste of cheese. So that have to be killed by the pasteurization. So pasteurization is carried out at 73 degrees Celsius for 15 to 20 seconds only. High temperature, short time. However, spores producing bacteria such as Clostridium acetobutyricum, which can cause ripening process by forming hydrogen gas and butyric acid from fermentation of the lactic acid, are reduced by addition of chemicals. So pasteurization जो होता है हमें 73 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 सेकेंड्स तो करना ही है. इसमें बहुत सारी अनवांटेड जो कंटामिनेटेड ऑर्गेनिजम्स लाइक कोलिफॉर्म्स वगैरह जो होता है, ये जो डिसएग्रीबल टेस्ट दे सकता है चीज़ में, वो किल होते हैं. और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी स्पोर फॉर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं लाइक क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटेरिकम which are essential for the ripening process of the cheese. So जो कि हाइड्रोजन गैस और ब्यूट्रिक एसिड फॉर्म करके लैक्टिक एसिड से ब्यूट्रिक एसिड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करके राइपनिंग करवाते हैं. The most common chemicals that have been added to prevent the unpleasant flavor by Clostridium acetobutyricum are sodium nitrate and hydrogen peroxide. अब हालांकि ये क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटेरिकम जो है ये राइपनिंग ऑफ चीज करवाता है, लेकिन इफ इट इज प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट तो ये अनप्लेजेंट फ्लेवर भी दे सकता है चीज को. सो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कभी कभी सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड चीज प्रिपरेशन में डालना पड़ता है ताकि कोई अनप्लेजेंट फ्लेवर क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटेरिकम से ना हो. This is all about the pasteurization process. Next is curdling. Curdling is what is curdling? Curdling is the separating the milk into solid curd and liquid whey. You know,
दूध से जब दही बनता है तो दही कुछ सॉलिड पार्ट जो होता है दैट इज नोन एज कर्ड और दही, और जो लिक्विड बच जाता है दैट इज नोन एज व्हे. सो ये कर्डलिंग प्रोसेस जो होता है ये separating the milk into two parts, solid curds and liquid whey. Usually this is done by one, acidifying the milk directly by addition of the acids like vinegar, that is acetic acid, in a few cases, and adding rennet even. Or second process of curdling is adding the starter bacteria are employed instead. डायरेक्ट हम उसमें स्टार्टिंग कल्चर ही डाल सकते हैं. स्टार्टर कल्चर यूज्ड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग. स्टार्टर कल्चर डालने पर कुछ चीज़ें होती है जो हमें वहाँ करनी ज़रूरी होती है. एबिलिटी टू प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड फ्रॉम मिल्क शुगर्स. अगर हम स्टार्टर कल्चर कर्डलिंग करने के लिए डाल देते हैं तो उनमें एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो कि प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड फ्रॉम मिल्क शुगर. मिल्क में लैक्टोज है तो वहाँ से वो लैक्टिक एसिड स्टार्टर कल्चर जो है वो उनमें एबिलिटी होती मतलब उनमें एबिलिटी होनी चाहिए स्टार्टर कल्चर में, ताकि वो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर पाए या प्रोड्यूस कर पाए. दे स्टार्टर कल्चर शुड हैव द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स. मिल्क में रहने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन्स को एबिलिटी होनी चाहिए उनको ब्रेक करने की. एंड दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इवन. ये तीनों अगर एबिलिटी उनमें है तो वो स्टार्टर कल्चर हम यूज कर सकते हैं. नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज स्टार्टर कल्चर्स बिलोंग्स टू द लैक्टोबैसिलाई. नो डाउट लैक्टोबैसिलाई, एज वी नो, लैक्टोबैसिलाई इज अ नेचुरल bacteria found to be associated with the milk, also streptococci. So most commonly used starter culture जो रहते हैं वो लैक्टोबैसिलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई फैमिली से बिलोंग करते हैं. लैक्टोबैसिलाई फॉर्म्स लैक्टिक एसिड which lowers the pH, which is important in syneresis. Syneresis means contraction of coagulum accompanied by elimination of the whey. And the salt of calcium and phosphorus released increase the firmness of the curd. So lactobacilli जो हम इस्तेमाल करते हैं that forms the lactic acid and lowers the pH, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है सिनेरेसिस के लिए. सिनेरेसिस मतलब जो कर्डलिंग जिस समय होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर कर्ड सॉलिड फॉर्म होके कॉन्ट्रैक्शन होके कोएगुलम अकम्पेंड हो जाए और कोएगुलम ज़्यादा बने और वहाँ से वे ज़्यादा से ज़्यादा निकले. दैट प्रोसेस इज नोन एज सिनेरेसिस. और सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये भी वहाँ से सैंपल में से रिलीज हो जाएगा एंड दैट इंक्रीज द thickness of the curd. Lactic acid also suppress surviving bacteria after pasteurization and recontamination. Poonam, put your mic off. So lactic acid जो होता है वो काफ़ी बैक्टीरिया जो पास्चराइजेशन और रिकंटामिनेशन के बाद भी सर्वाइव रहते हैं उनको भी सप्रेस करने का काम करता है. सम बैक्टीरिया and the enzymes they produce also play a large role in the eventual flavor of aged cheese. Some lactobacilli bacteria and their products also जब चीज़ का एजिंग होता है तब काफ़ी अच्छा फ्लेवर देने का महत्वपूर्ण काम करते हैं. Propionibacter ceremonii, which produces carbon dioxide gas bubbles during aging, giving Swiss cheese or in an emmental its holes. Now, some fresh cheese are curdled only by adding acids, but not cheese also use rennet. But most cheeses also use rennet. तो कुछ ऐसे फ्रेश चीज़ होते हैं जिनको कर्डल करने के लिए सिर्फ एसिड ही ऐड करना पड़ता है और कुछ कुछ चीज़ ऐसे भी होते हैं जो रिनेट एडिशन करने पर भी अच्छा बन सकते हैं. So rennet causes coagulation of protein, casein protein,
and sets the cheese into a strong and rubbery gel compared to the fragile curds produced by the acid coagulation alone. So रिनेट जो होता है ये चीज केजिन प्रोटीन जो होता है मिल्क का उसको अच्छे से कोएगुलेट करता है और चीज को सेट करता है स्ट्रांगली एंड रबरी जेल के फॉर्म में एज कंपेयर टू द फ्रेजाइल कर्ड्स प्रोड्यूस बाय द एसिड कोएगुलेशन ओनली। अगर हम सिर्फ एसिड डाल के ही डायरेक्ट मिल्क को कोएगुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर एक कर्ड फॉर्म होता है जो कि फ्रेजाइल होता है, जो इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर हम एसिड कोएगुलेशन के साथ रिनेट भी डाल देते हैं तो रिनेट केजिन प्रोटीन को अच्छे से कोएगुलेट करता है, फर्मनेस देता है और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड रबरी जेल चीज का बना के प्रोड्यूस करता है। इट ऑल्सो अलाउज कर्डलिंग एट लोअर एसिडिटी, important because flavor making bacteria are inhibited in high acidic environments। साथ ही साथ जो रिनेट हम डालते हैं वो रिनेट लो एसिडिटी पर ही कर्डलिंग करना शुरू कर देता है और जो कि फ्लेवर मेकिंग बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। अदरवाइज रिनेट ना डालने पर जो एसिडिक कोएगुलेशन हम करते हैं तो वो हाई एसिडिटी इन्वायरमेंट की वजह से बहुत सारे ऐसे कर्डलिंग फ्लेवर मेकिंग बैक्टीरिया को इनहिबिट भी कर सकता है। इन जनरल softer, smaller, fresher cheese are curdled with a greater proportion of acid to rennet than harder, larger, longer aged varieties। So generally देखा जाए तो with a greater proportion of acid to rennet अगर हम डालते हैं तो we will get good quality of cheese। Before making curd, calcium chloride is added to obtain constant coagulation time and provide firmness to the coagulum. If coagulum is soft, it will result in the heavy losses of next slide proteins, fats and synergies। So अगर हम चीज प्रिपरेशन में कांस्टेंट कोएगुलेशन टाइम चाहते हैं सो इट इज बेटर टू ऐड कैल्शियम क्लोराइड बिफोर मेकिंग कर्ड। कर्ड बनाने से पहले हम उसमें अगर कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं तो इट प्रोवाइड्स a constant coagulation time and provide firmness to the coagulum। If coagulum is soft, coagulum बहुत ज़्यादा soft रहा so it will result in the heavy losses of proteins, fats and synergies। That's why we need to add calcium chloride during before curdling so that it will provide us the firm coagulum। For low fat milk, this डाइसोडियम फॉस्फेट इज एडेड। अगर कोई मिल्क ऐसा है जिसका चीज बनाना है जो लो फैट वाला है तो उसमें सोडियम डाइसोडियम फॉस्फेट डाल दे। एडिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन शॉर्टर कोएगुलेशन टाइम। KNO3 or NaNO3 is added to destroy the coliforms and Clostridia present in the milk as they form the butyric acids। और अगर कोई ऐसा कोलिफॉर्म या क्लोस्ट्रीडिया प्रेजेंट रहता है मिल्क में जो कि ब्यूट्रिक एसिड फॉर्म करके कोएगुलम फॉर्मनेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं तो वी हैव टू ऐड KNO3 and NaNO3 in it। This is all about the curdling। Now we will discuss the curd processing, that is cutting of coagulum and heating। During industrial production of the emmental cheese, the undrained curd is broken up by rotating mixtures। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ emmental चीज जब हम करते हैं तो अनड्रेन्ड कर्ड जो रहता है उसको रोटेटिंग मिक्सचर में लेके ब्रोकन अप किया जाता है। एट दिस पॉइंट द चीज हैज सेट इनटू वेरी मॉइस्ट जेल। ठीक है, जब इसको मिक्सर रोटेटिंग मिक्सचर में डाल के चीज को हम ब्रोकन अप करते हैं तो एट दिस पॉइंट चीज हैज सेट इनटू वेरी मॉइस्ट जेल, बहुत ज्यादा मॉइस्ट जेल बन जाता है। सम सॉफ्ट चीज आर नाउ इसेंशियली कंप्लीट, दे आर ड्रेन्ड, उसमें से पूरा वे निकाला जा चुका है, सॉल्टेड एंड पैकेज्ड। जो सॉफ्ट चीज होते हैं वो
ड्रेन हो जाते हैं, सॉल्ट ड्रेन हो जाता है और पैक किए जाते हैं. फॉर मोस्ट ऑफ द रेस्ट द कर्ड इज कट इनटू द स्मॉल क्यूब्स. कर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है. दिस अलाउस वाटर टू ड्रेन फ्रॉम द इंडिविजुअल पीस ऑफ कर्ड. इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटने की वजह से क्या होता है कि ये जो इंडिविजुअल पीसेस है उसमें से वाटर जो है वो पूरा ड्रेन आउट किया जाता है. सम हार्ड चीज आर देन हीटेड टू टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 35 to 55 डिग्री सेल्सियस. कुछ हार्ड चीज को 35 to 55 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाएगा. दिस फोर्सेस, इसकी वजह से क्या होता है, दिस फोर्सेस मोर वे फ्रॉम कट कर्ड. इसकी वजह से क्या होता है, वो हीट करने की वजह से वहां से जो वे है वो बाहर निकल जाता है, वो ड्रेन आउट हो जाता है. इट ऑल्सो चेंज द टेस्ट ऑफ द फिनिश चीज अफेक्टिंग बोथ द बैक्टीरियल कल्चर एंड द मिल्क केमिस्ट्री. ये फिनिश चीज जो फाइनल बनने वाला चीज है उसका थोड़ा टेस्ट भी चेंज कर सकता है और दोनों को अफेक्ट करता है, बैक्टीरियल कल्चर को भी और मिल्क की केमिस्ट्री को. Cheese that are heated to higher temperature are usually made with the thermophilic starter bacteria which survives this state even either lactobacillus or streptococcus. So इतना टेम्परेचर पर अगर हम 35 to 55 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम हीट करने वाले हैं, सो उस वजह से उसका ड्रेन आउट तो हो जाएगा, फिर वहाँ से पूरा निकल जाएगा, बट इट मे चेंजेस द टेस्ट एंड इट मे अफेक्ट द बैक्टीरियल कल्चर एंड मिल्क केमिस्ट्री. सो इसीलिए हमें चीज़ें जो चीज़ हम बनाते हैं जो जिनको हीट करना होता है एट हायर टेम्परेचर, सो उनको ऐसी चीज़ बनाने के लिए